Hello and welcome back, dear children, to my channel Simplified Maths. Today, in this particular lecture, we are continuing with chapter 10, Vector Algebra. In that, today I am taking part 4. In the last lecture, by mistake, dear students, I have written part 8. So that was a mistake, it was part 3. Okay, and now today I am continuing with part 4. And what was done in the last lecture? We have completed the what we say the cross product, the cross product or an outer product, right, or a vector product of two vectors, isn't it? There were two methods. We have studied the two methods, how to find A cross B, and also we have seen A cross B means what. हाँ, वो भी एक बहुत important चीज़ याद रखनी है. When you write A cross B, I'm just refreshing it. It is a vector perpendicular to both. ये बहुत important चीज़ है. It's a vector perpendicular to both. Okay, vector perpendicular to both A and B. Both vector A and vector B. ये हो गया A क्रॉस B. ठीक है, वो राइट हैंड स्क्रू लॉ से हमने लास्ट टाइम देखा था, याद है ना? ओके, नाउ what we will do is the last theory part of this chapter is left now. Okay, and that is there will be a triple product. Okay, vector, no, not vector, but scalar triple product. Now the title will be like this. Okay, it's a, in fact, another way it's called box product also. Scalar triple product. Okay, scalar triple product it is of vectors. So, in another way, it is also known as scalar triple product is also known as box product. उसको दूसरा नाम भी दिया हुआ है. What it's called is box product. Box product name given is just because of its symbol और कुछ नहीं है दोस्तों. ठीक है, right? Now this scalar triple product is a mixture of both the products, dot and cross. Now see how it is. That suppose that you have three vectors A, B and C. Okay, right? If A, B and C are three vectors, okay, three vectors given, any three vectors, okay, right? Then what is what we say scalar triple product. Now see the word scalar come, that means the resultant quantity will be a scalar. Okay, then three vectors given, then now the formula is given like this actually, or either you say formula or you say definition, that you have to take A dot B cross C. Okay, A dot B cross C करना पड़ेगा. Then it is called a scalar triple product or a box product. Okay, scalar triple product or a box product. ठीक है, of vectors. ठीक है, और also it is denoted by उसका ये तो वो उसकी डेफिनेशन हो गई, बट उसकी डिनोटेड जो करते हैं ना, तो उसमें अभी न्यू एनसीईआरटी बुक में हमारा दो नोटेशंस दिया हुआ है. इन द स्टेट बोर्ड देयर वाज ओनली वन नोटेशन. सो इट इज़ डिनोटेड बाय, सी ऐसे बॉक्स ब्रैकेट में लिखते हैं यू, और ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, मतलब बीच में कॉमा करते हो तो भी चलता है, और यू कैन से
सिंपली बॉक्स में ऐसे ए बार, बी बार, सी बार, मतलब डोंट पुट कॉमा. ओके, don't put comma in between, then also no problem. Either you put comma, or if you don't put comma, but you have to put the bracket, which is a big one, means box. ये बॉक्स ब्रैकेट की वजह से इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज बॉक्स प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? ओके. एंड सो क्या हुआ? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? दैट इज द बॉक्स ए बी सी or a comma b comma c, whatever you want to use, is equal to a dot b cross c. Now just tell me that this will be a scalar or a vector quantity. आपको लगे कि सर यहाँ b क्रॉस c आ गया तो वेक्टर हो गया. सो यू आर राइट, बट यू नो द सिंप्लीफिकेशन रूल. पहले ब्रैकेट को करना पड़ता है. ब्रैकेट ऑलवेज कम्स फर्स्ट. So first you have to simplify the bracket. So b cross c will be a vector. Okay, ठीक है. अब b cross c वेक्टर हो गया, बट उसके बाद then you take a dot b cross c dot. So dot comes later, means afterwards. First cross and then dot. So cross से हमको वेक्टर मिला, बाद में a के साथ डॉट किया, तो ultimately the resultant will be a scalar quantity. Hope you understand this, and therefore it is called a scalar triple product, है ना, और a real number. It's a scalar और a real number. Scalar को दूसरा क्या बोलते हैं हम? Real number भी बोलते हैं, है ना. ठीक है. Is that clear, dear students? Right. Now, suppose we are almost at the end of the theory part. Okay, that if you take vector A, this is very important note, that if we take vector A is equal to whatever symbol you want to use, say x1, y1, z1 or a1, b1, c1. टेक्स्ट बुक में वो लोगों ने a1, b1, c1 दिया हुआ है. b वेक्टर इज a2, b2, c2 एंड c वेक्टर is suppose a3, okay, b3, c3 given. Suppose this is given, then अगर ये दिया हुआ है तो ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है ना, उसका रिजल्टेंट आंसर जो आता है वो क्या होता है दोस्तों, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. बट वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट एक्सप्लेनेशन, डियर चिल्ड्रन. We will directly write the resultant will be determinant. Be careful, okay. Resultant will be मतलब ABC, box ABC will be a determinant. Determinant में A vector will be the first row, means A1, B1, C1. B will be the second row, A2, B2, C2. And C will be the third row, A3, B3, C3. Okay, ठीक है ना, right? So this is very very important, and I hope that which one is easy to apply. This is also the formula of a box product, and that was also there, A dot B cross C. Actually this is nothing but A dot B cross C, है ना, इज इक्वल टू दिस, लाइक दिस. तो A डॉट B क्रॉस C में पहले B क्रॉस C ऑब्टेन करना पड़े, उसके बाद A के साथ डॉट करना पड़े. सो इट विल टेक लिटल मोर टाइम. बट इफ़ यू यूज डिटर्मिनेंट, you know determinant is very familiar for us, and you will get very fast answer. I hope you understand this thing. Okay, right. So this was the first note. Now the second note. ये नोट नंबर 1 था हमारा. अगर नंबर नहीं दिया है तो मैं नंबर दे देता हूँ. दिस इज नोट नंबर 1. Then the second note is this. You know what is the property of determinant? Once the determinant is there in
okay, the formula determinant की एक property, if you interchange the any two rows or any two columns, then the value of the determinant change, means becomes the negative of the original, isn't it? तो यहाँ से ध्यान से देखना कि if you take ABC box product, then it will be equal to BCA box product will be equal to, okay, CAB box product. हाँ, तो आपको लगे कि सर माइनस कहाँ गया, तो एक्चुअल में ABC में से अगर आप BCA बनाओगे ना, देन यहाँ पर आपको 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा. आप थोड़ा चेक करना हो तो कर लेना. यू हैव टू इंटरचेंज द रो 2 टाइम्स. सो वंस यू इंटरचेंज देन बिकम माइनस, अगेन यू इंटरचेंज अगेन माइनस, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट? सो आप थोड़ा ध्यान से देखना कि ABC में से BCA बनाओगे ना तो वो ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगी, क्योंकि 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा और 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस होके प्लस बन जाएगी. ठीक है, राइट? एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर गिवन, डियर चिल्ड्रन. ओके, दैट्स एन ऑब्जर्वेशन गिवन देयर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके ऊपर के 2 मार्कर्स भी आते हैं कभी कभी, या तो ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं, राइट? एंड इन फैक्ट वॉट एवर द आंसर ऑफ दिस, ओके, इफ यू सी दैट इट्स अ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट मीन्स आंसर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. बट इफ आई टेक द मॉड्यूलस ऑफ दिस, इसका अगर मैं मॉड्यूलस ले लूँ ना दोस्तों, देन इट विल बी अ volume of a parallelopiped. Okay, this is something amazing. See, volume of a parallelopiped की फॉर्मूला है volume of a parallelopiped. Now what is parallelopiped? What type of diagram it is? Okay, is V is equal to, अब फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला में और कुछ नहीं है, यही है, सेम ओनली, मीन्स ओके, मॉड्यूलस ऑफ A डॉट B क्रॉस C. ओके, और यू कैन टेक इट एज बॉक्स प्रोडक्ट A B C. ठीक है, राइट? नाउ सी, एक्चुअली इसकी डिटेल थियरी में हम नहीं जाएंगे, बट व्हाट इज़ पैरेललोपाइप्ड, ये डायग्राम कैसा होगा ये थोड़ा अगर आपको जानना हो तो पैरेललोपाइप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 382 पे ड्रॉ करके दिया हुआ है दोस्तों. ठीक है, एक्चुअल में वो क्या है, आपको वो ड्रॉ करना हो ना तो कैसे ड्रॉ करोगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया सपोज मैंने यूँ. ठीक है, सपोज एक ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, राइट? और उससे थोड़ा डिस्टेंस पे और एक पैरेललोग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस. ओके, और आफ्टर ड्रॉइंग 2 पैरेललोग्राम्स, आफ्टर ड्रॉइंग 2 पैरेललोग्राम्स, जो वर्टाइसिस है ना वो वर्टाइसिस को ज्वाइन कर दो. इसको यहाँ से यूँ ज्वाइन कर दो, इसको यूँ ज्वाइन कर दो, यूँ ज्वाइन कर दो, यूँ ज्वाइन कर दो. तो ये जो डायग्राम फिगर बनी ना 3 डायमेंशनली, ठीक है, तो ये हो गई है पैरेललोपाइप्ड. ठीक है दोस्तों, राइट? अब डायग्राम में ऐसा बताया गया है दोस्तों कि इसका ये जो वर्टेक्स है उसको O लिया हुआ है, राइट? तो क्या किया है, थोड़ा ध्यान से आप फिगर में देखोगे ना, तो दिस इज वन एज वेक्टर इज A गिवन नेम, दिस इज अ सेकंड एज ऑफ द पैरेललोपाइप, उसको B दिया हुआ है, और ये थर्ड एज जो है उसको C दिया हुआ है. ओके,
right? So you know all these three vectors are the vectors corresponding to the three adjacent edges. उसके लिए एक वर्ड भी था, आई डोंट नो इन द एनसीईआरटी बुक इट इज गिवन और नॉट. दे कॉल इट कॉटरमिनस एजिस. व्हाट दे कॉल? कॉटरमिनस एजिस. ओके, राइट. सो अकॉर्डिंग टू कॉटरमिनस एजिस मीन्स व्हाट? देखो ये हमारी टेक्स्ट बुक है ना दोस्तों, ये टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक इज नॉट अ पैरेललोपाइड बट इट्स ए क्यूबॉइड शेप. लेकिन आप क्या करो पता है, ये टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा यूँ स्लैंट कर दो ऐसे, ये जो कॉर्नर है ना उसको थोड़ा सा प्रेस कर दो यूँ ऐसे. तो देखो थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ऐसे स्लैंटिंग हो जाएगी ये सरफेस. और यहाँ से स्लैंट करोगे ना तो ऑल द सरफेसेस यहाँ पे ऑल सब हो जाएगा. तो वो जो शेप बन जाएगा ना, दैट इज़ अ पैरेललोपाइड. आपके घर पे अगर माचिस है, माचिस बॉक्स, मैच बॉक्स, तो मैच बॉक्स में से अंदर से माचिस निकाल दो तो जो रहेगा वो होगा क्यूबॉइड. ठीक है, राइट. अब उसको आप ऊपर से थोड़ा सा दबा दो, मैच बॉक्स को ऊपर से प्रेस कर दो तो वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, यू स्लैंटिंग हो जाएगा. तो वो जो शेप बनेगा दैट इज़ ए पैरेललोपाइड. और उसकी जो थ्री एजिस होती है एडजेसेंट एजिस, उसका वेक्टर्स जो कॉरस्पॉन्डिंग रहता है उसका आप बॉक्स प्रोडक्ट कर लो, देन दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ a parallelogram. Okay, so hope you are getting clear idea what is a volume of a parallelopipe, not parallelogram, parallelopipe. Okay, in Hindi or even in Gujarati it is known as समांतर फलक. उसको क्या बोलते हैं? समांतर फलक. Is that clear? Okay, right. सो मॉड्यूलस क्यों रखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों. इसमें भी मॉड्यूलस में भूल गया हूँ. मॉड्यूलस वाई दे पुट? बिकॉज इट्स ए डिटर्मिनेंट आंसर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. ओके, देयरफॉर मॉड्यूलस रखना पड़ता है बिकॉज इट्स ए वॉल्यूम. ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग डियर चिल्ड्रन, राइट. सो ऑल द थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर, राइट. एंड नाउ वी विल डू ओनली फ्यू सम्स. ओके, द एक्सरसाइज इफ यू सी, यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं, राइट. बट ऑल आर वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल. यू कैन ट्राई एट योर ओन. फ्रॉम ईच एक्सरसाइज आई विल डू फ्यू, ओके, 1 2 सम्स आई विल डू एंड वी विल finish the chapter quickly. Because of the physics, I know that you children, you are knowing this chapter very well. That is the only reason that I am going little bit fast. Okay, so now we will begin with exercise 10.2. So from exercise 10.2, okay, I will do only few sums, not all. The beginning sums I am not doing, find the magnitude and all that. Okay, right. I am directly going for whatever I feel to do. Suppose that fourth sum, it's easy but let me do it, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं लगे कि सर ने बिल्कुल ही छोड़ दिया. फोर्थ सम में ऐसा है कि द टू वेक्टर्स आर इक्वल देन फाइंड एक्स एंड वाई. ओके, इट इज गिवन दैट 2i प्लस 3j इज इक्वल मतलब दिस, नो, xi प्लस yj, दिस इज गिवन. ओके, 2i, सॉरी 2i. ठीक है, तो what you can do is, एक्चुअली तो यहाँ से इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल तो सीधा ही कंपेयर द कोएफिशिएंट. व्हाट इज द कोएफिशिएंट? इसको वो उसमें फॉर्म में लाने की भी ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक दिस, 2 3 इज इक्वल टू एक्स वाई. होप यू रिकॉल द थियरी. और ऐसे कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है, ये सीधा भी कंपेयर कर सकते हो. और सो व्हाट इज एक्स इक्वल टू 2 and y is equal to 3. See how simple it is, isn't it? Okay, right. So I think जो मुझे लगे वही मैं करूँगा. अभी मैं 7 सम करूँगा, सम नंबर 7.
सम नंबर 7 में वेक्टर ए गिवन इज आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k, दिस इज गिवन। Now what is the question asked? Just see, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। Find a unit vector in the direction of vector A. Okay, you have to find a unit vector in the direction of vector A. So what is a unit vector in the direction of vector A? First of all, आप ये भी कर लो कि A is equal to, इसको मैं 1 1 2 लिख दूँ, इजी रहेगा। Okay, right? Now, unit vector means A cap, right? और उसका फॉर्मूला डेफिनेशन क्या था, मैंने बताया था हाँ कि एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ओके, इज ए यूनिट वेक्टर। ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, राइट? तो ए वेक्टर लिखो डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड करो, तो ए इज 1 1 2 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4। सो अंडर रूट ऑफ 6 आ गया। सो अल्टीमेटली आंसर क्या आया? सो 1 अपॉन रूट 6 कॉमा 1 अपॉन रूट 6 कॉमा 2 अपॉन रूट 6, ये हो गया आंसर। ओके, राइट? सो सी हाउ सिंपल इट इज। नाउ सी सम नंबर 8, ये यूनिट वेक्टर वाले हम सब थोड़े थोड़े ट्राई करेंगे क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज में बहुत आते हैं। If P and Q are given 1 2 3 and 4 5 6, see P 1 2 3, Q 4 5 6 given, ये गिवन है हमको। ठीक है, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू कैसे फाइंड करोगे, वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद। यहाँ पर मेरा ये चैप्टर में कहना मैं भूल गया हूँ, मे भी मुझे याद आया अभी कि नहीं बोला होगा, बट पी क्यू मतलब क्यू माइनस पी होता है, यू नो। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये पी क्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है। सो क्यू माइनस पी करना है, ओके, अल्टीमेटली। सो 4 माइनस 1, सो 4 माइनस 1 विल बी 3, okay, 5 minus 2 will be also 3, 6 minus 3 will be also 3, is that clear? okay, तो ये हो गया वेक्टर पी क्यू। अब इसकी डायरेक्शन में आपको पूछा गया है यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो सपोज आई से एक्स कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, मैंने जस्ट ऐसे ही नोटेशन दिया हुआ है, पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। ठीक है, अब जो भी आंसर आए आप खुद कर लेना होमवर्क में, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। सो दिस इज अगेन इन द सेम डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। ओके, राइट? देन ninth sum is also regarding unit vector. Two vectors are given a and b. Then they ask, question ask is find the unit vector in the direction of a plus b. Unit vector in the direction of, in the direction of a plus b. Okay, तो a plus b की डायरेक्शन में तो पहले a plus b करो, उसको कुछ भी नाम दे दो। ठीक है ना? फर्स्ट व्हाट यू डू, a प्लस b कर दो, राइट? जो भी वेक्टर्स दिए उसका एडिशन कर दो। 10 sum or 9 sum it is a 9 sum, right? So a plus b means 2 minus 1 2। अब ध्यान से देखो, 2 minus 1, I am writing direct in the triplet form, and plus b vector is -1 1 -1 -1 1 -1।
ठीक है। अब इसका एडिशन कर दो जो भी मिले। सो 2 माइनस 1 इज़ 1, माइनस 1 प्लस 1 इज़ 0, अगेन 2 माइनस 1 इज़ 1। तो ये जो भी आंसर मिला ना उसको आप सी के कुछ भी नाम दे दो, जस्ट से इट इज़ सी और एक्स और वॉट एवर, और बाद में आप सी कैप फाइंड करो और एक्स कैप फाइंड करो। सो वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ओके राइट। सो दैट वे यू विल गेट दी यूनिट वेक्टर। अभी इसका आगे आंसर आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है राइट। 10 sum number 10. Sum number 10 is also regarding unit vector, but they not a unit vector, sorry. Find a vector of magnitude 8 or 8 unit in the direction of a given vector. Now see, whatever the given vector, let me say it is A, okay. तो A वेक्टर आपको दिया हुआ है phi I माइनस जे प्लस 2k, दैट इज़ उसको आप ट्रिपलेट के फॉर्म में लिख दो तो 5 माइनस 1 2, ओके। ये हमारा वेक्टर दिया हुआ है। अब इसका व्हाट दे से इन दिस डायरेक्शन यू हैव टू फाइंड आउट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, 8 यूनिट। सो नाउ व्हाट विल बी ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए करोगे तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा ना, ठीक है। सो दैट विल बी व्हाट 5 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, सो इट विल बी 25 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है ना, राइट। सो इट विल बी 30 अंडर रूट ऑफ 30। सो you have 5 upon under root of 30 minus 1 upon under root of 30, 2 upon under root of 30। ये जो मिला वो हमको यूनिट वेक्टर मिला, ये अभी यूनिट वेक्टर मिला हमको, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ओके ऑफ ए। अभी हमको यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए। इन द टेंस ऑफ दिस इज इन दिस डायरेक्शन यू फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8, ओके 8 यूनिट वाला चाहिए। एंड सो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ये जो भी वेक्टर मिला इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, बिकॉज इट्स ए यूनिट वेक्टर। अभी हमको कितना मैग्नीट्यूड वाला चाहिए 8, तो वॉट एवर द आंसर यू गॉट मल्टीप्लाई इट बाई 8, दैट्स ऑल। मतलब ये जो भी हमारा है ना, ठीक है, उसको अगर मैंने ए कैप लिखा हुआ है, हाँ ए कैप, तो 8 ए कैप करना होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। सो ये हमारा 8 यूनिट वाला हो जाएगा। तो इसको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 8 5 40 अपॉन रूट 30 माइनस 8 अपॉन रूट 30 एंड 16, 8 2 16 अपॉन रूट 30, है ना, ओके। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई कुछ सिंप्लीफाई करो तो रूट 30 है तो वो क्या हो जाएगा 15 2 तो रूट टू ऊपर नीचे से निकाल के, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बराबर। अगर कुछ सिंप्लीफाई होता तो करते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रूट 2 यू कैन कट आउट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन यू कैन राइट दी आंसर, अदरवाइज दिस इज दी आंसर। ओके दोस्तों, राइट। सो एक्सरसाइज 10.2 में मुझे जो भी लगा करने जैसे सम्स वो मैं किया हुआ है। अभी एक्चुअली 11th और 12th सम भी आप मतलब यू कैन ट्राई द डायरेक्शन कोसाइन दे से इन द 12th सम द क्वेश्चन आस्क इज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन, दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई। व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, तो वो फॉर्मूला भी आपके पास है दोस्तों, ओके। नाउ द सपोज वेक्टर्स आर गिवन 2 वेक्टर्स एंड इफ यू वांट टू चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, okay,
So how to check whether they are collinear or not? That also you know. To check the collinearity, two vectors are given, then the theory is not given, but if you take no, इसके बाद एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट आता है, लेकिन मैं आपको बोल के रखता हूँ अगर क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो वेक्टर आ जाए ना तो वो कोलिनियर होता है. ओके, ये याद में रखना. इज दैट क्लियर? R3 में बोल रहा हूँ मैं, 3 डायमेंशनल में अगर कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो वेक्टर हो जाता है 3 डायमेंशनल में तो वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं. ठीक है, राइट? सो यू कैन यूज दैट मेथड और वॉट एवर द मेथड दे हैव यूज्ड इन द एग्जाम्पल्स. यू जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स. दोस्तों एग्जाम्पल्स देखोगे बहुत ही ईजी रहेगा ये एक्सरसाइज. ये पूरा चैप्टर कुछ नहीं है. ठीक है, राइट? सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गो फॉर एक्सरसाइज 10.3 and if possible 10.4 also. Okay, so till then, thank you very much. Have a nice day. Bye bye.